Please see chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations are complete revisions of chemical reactions and equations. We will take all the examples from your book. We will see magnesium solid plus oxygen. It is magnesium oxide. One question must be come for balancing. How many magnesium is here? 1. How many magnesium is here? 1. Oxygen is 2. Here we write 2. This is magnesium oxide. First reaction is combination reactions. What is the combination reaction? I will speak 2 times and I will give all the examples from your book. Combination reaction. It is a reaction in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product. It is a reaction in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product. It is a reaction in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, or it is a combination reaction. One of the most reactions in your book that must become, that is the reactions of water with quicklime. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O. बेटा ये तो आएगा, पक्का आएगा एग्जाम में, 100% आएगा. दिस रिएक्शन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग. व्हाइट वॉश में रिएक्शंस यूज होता है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. Calcium hydroxide plus heat. It is one of the most important reaction. This is already balanced. How many calcium? 1. How many hydrogen? 2. How many hydrogen? 2. How many O? 1. So it is one of the most important reaction. So it is the combination reaction. Combination reaction, it is a reaction in which 2 or more than 2 reactants. It is called reactants. What? It is called reactants. 2 or more than 2 reactants combine to form a single product. It is a reaction in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product. और भी एग्जाम्पल है. C plus O2 CO2 plus heat. So it is also known as exothermic reaction. What? Exothermic reaction. Exothermic reaction. Exothermic reaction. It is a reaction in which heat is produced, heat is released. जिसमें heat released होगा, it is known as exothermic reaction. Generally combinations reactions are exothermic reaction. Generally combination reactions are exothermic reaction. One of the most important reaction, H2 gas plus O2 gas, it is known as H2O. So it is exothermic reaction plus heat. So here we read the 2 reactions. Combination reaction. Combination reaction में सबसे most important reaction यही है, because this reaction is used in white wash. White wash में ये reaction use होता है. Means calcium hydroxide, it is also known as the slacked lime. याद है ना आप लोगों को? Slacked lime याद है ना? It is also known as slacked lime. लिखते भी जाएं. All this. ठीक है, तो it is the combination reaction. It is combination reaction. Combination reactions, it is a reactions in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product. And it is most important reaction of combination reaction. After that, we read about the decomposition reaction. What? Decomposition reaction. Combination reactions के बाद decomposition reaction. Just reverse of combination reaction.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन था क्या? इट इज ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है इट इज ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर एग्जाम्पल decomposition reaction. What is the decomposition reaction? It is a reaction in which a single reactant, the most example of decomposition reaction is ferrous sulfate, FeSO4 ferrous sulfate. When we heat the ferrous sulfate, we get ferric oxide Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. This is one of the most important reactions of decomposition reaction. ये भी एग्जाम में आएगा। तो what is the decomposition reaction? It is a reaction in which a single reactant, एक single reactants, it is a reaction in which a single reactants breaks down into 2 or more than 2 simpler product. It is known as decomposition reaction. और बैलेंसिंग का तो 1 नंबर का आएगा, पक्का आएगा बैलेंसिंग का। Then how many iron here? 1. How many iron here? Sulfur is how many? 2. Oxygen is how many? 3 plus 3 to 8 or 4 2 ja 8. तो इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? 3 टाइप्स। कौन कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम डायरेक्ट हीट दे देते हैं। क्या देते हैं? डायरेक्ट हीट दे देते हैं। A reaction in which we give the direct heat दे देते हैं, it is known as thermal decomposition reaction। और कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction, a reaction in which a single reactants break down by giving the heat। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। What? इलेक्ट्रिसिटी। Electrolytic decomposition reaction, it is a reaction in which a single reactant breaks down by giving the electric current। और एक कौन सा है लास्ट? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग लिखते भी जाए साथ साथ रिवीजन के लिए। इट इज द ग्रेट रिवीजन। तो इट इज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम सनलाइट देते हैं, सनलाइट। तो वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स where we give the direct heat to break down a single reactant, one decomposition reaction in which we give the electric current, and one decomposition reaction in which we give the sunlight। means decomposition 3 way में होगा, by giving the heat, by giving the electric current and by giving the sunlight। अब तीनों का एक एक एग्जाम्पल्स याद रखिए। डायरेक्ट हीट में ये था, और अनदर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को हमने हीट दिया, डायरेक्ट हीट, देन वी गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक करंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, but water must be acidified, no? Acidified water में when we find the current, it breaks down is to H2 plus O2।
H2 plus O2, and here H2 plus O2 it breaks into H2 or O2. एनोड मीन्स यू नो पॉजिटिव, तो एनोड पर आएगा क्या O2 और कैथोड पर आएगा हाइड्रोजन। तो ये भी याद रखिएगा, 1 नंबर में आ सकता है। इट इज एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अनदर इज सनलाइट। सनलाइट में वी टेक सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस when we give the light it breaks down into Ag plus Cl, Ag plus Cl2 और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट दिया हमने और ये बना Ag plus Br। This reaction is used is black and white photography. This is extremely most important, black and white photography। और ये white होता है white और ये brown, याद है ना आपको? white and brown। This is extremely most important, लिख लें आप लोग। brown means grey, not grey, ये grey हो, Ag ग्रे और दिस इज व्हाइट एंड ग्रे। तो इट इज द सेकेंड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरली एग्जाम में आएगा कि राइट द डिफरेंसेज बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Then combination reaction में 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, and decomposition में a single reactant breaks down into 2 or more than 2। अब now decomposition reactions के और भी examples है जो एग्जाम में आएगा, और वो reactions lead nitrate, और lead nitrate होता है white। lead nitrate PbNO3 whole twice, white lead nitrate को हम जब ब्रेक करते हैं, when we heat the white lead nitrate को हम जब हीट करते हैं, डायरेक्ट हीट मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डायरेक्ट हीट मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। when we डायरेक्ट हीट, और ये होता है व्हाइट व्हेन वी हीट इट, तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड PbO, और बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि ये येलो होता है। और ये लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस याद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन, और प्लीज बैलेंस इट। This is most important to balance it. Lead nitrate, how many lead nitrate here? How many lead is here? How many is here? 3, 2 जा 6. How many nitrogen? 2. So write here 2 nitrogen. सर फोन ही आएगा। और here is 2 nitrogen, 2 here, then 3, 2 जा 6, और 2 जा 4, we should write here 4 nitrogen. Oxygen, and how many lead? 2 lead, we write the 2 lead. Now it is okay. 4 2 जा 8 plus 2 10, but here 3 2 जा 6 and 2 12, here we write 2. This is the best way of balancing. बैलेंसिंग का ये सबसे अच्छा वे है कि टोटल रिएक्टेंट्स और टोटल प्रोडक्ट्स के एटम्स को इक्वल करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल में। सर ऑक्सीजन में क्यों नहीं आया? 2 2 जा 4, ऑलरेडी 2 है ना, हो गया। तो इट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। One is decomposition reaction, one more is decomposition reaction is calcium carbonate, जिससे हम क्विक लाइन गेन करते हैं। How we gain the quick line?
और you know quicklime is one of the most important compound used in white washing. याद है ना आप लोगों को, white wash में यूज करते हैं. तो कैल्शियम ऑक्साइड इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है ये, एग्जैक्टली राइट. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के हो गए? 3. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. और सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द रिएक्शन है लेड नाइट्रेट, बिकॉज हेयर चेंज इन कलर. ठीक है ना, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो ये हो गया बेटा 2 रिएक्शन. और एक हम इसी के साथ जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हमने लिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ आएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन. इंडोथर्मिक जहां हम हीट देते हैं किसी न किसी फॉर्म में. तो ऑल दीज आर इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं यहां. इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज ए रिएक्शन इन विच वी गिव द हीट, जिसमें हम हीट देते हैं. इट इज ए रिएक्शन इन विच वी गिव द हीट इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन. अ रिएक्शन इन विच वी गिव द heat is known as endothermic reaction. It is most important reaction, endothermic reaction. अब उसके बाद आते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और दिस इज एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के पहले displacement reaction, before the displacement reaction you have to learn the reactivity series. और आपको याद है केदारनाथ कालमाली, KNaCAMG, आलू जरा फीके पकाता है. उसके बाद कॉपर HgAg AU, ये रिएक्टिविटी सीरीज आ गई. अब डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेस करना, हटाना. वन पावरफुल एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस पावरफुल एलिमेंट्स फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स. यही है ना, डिस्प्लेस करता है. तो इट इज ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, it is a reaction in which more reactive elements displace the less reactive elements from their respective compounds. It is a reaction in which more reactive elements displace the less reactive elements from their respective compounds. It is a reaction in which more reactive elements displace the less reactive elements from their respective compounds. So it is a reaction in which more reactive elements displace the less reactive elements from their respective compounds. I will take the example from your book. Book में है Fe iron plus copper sulfate CuSO4. Iron plus copper sulfate aqueous. Iron is more reactive than copper, तो ये डिस्प्लेस करता है और ये FeSO4 बनाएगा प्लस कॉपर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. कॉपर सल्फेट इज नोन एज ब्लू और इट इज नोन एज ग्रीन. चेंज ऑफ कलर. तो कॉपर सल्फेट, when copper sulfate react with iron, iron displaces the copper and it forms iron sulfate plus copper.
क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? कॉपर प्लस FeSO4? नो रिएक्शन. Why no reaction? Because copper is less reactive than iron. Copper is less reactive than iron. कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव. आपके बुक में 3 रिएक्शंस है, तो पहले बुक के एक भी रिएक्शंस को नहीं छोड़ना है, और बुक के बाहर से रिएक्शंस नहीं आता, नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा. इट इज एक्सट्रीमली एनफ. बुक में जो रिएक्शंस है दैट इज एक्सट्रीमली एनफ. और वन रिएक्शन है वो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, लेकिन बुक के रिएक्शंस को नहीं छोड़ना है. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और ZnSO4 बहुत ब्रिलियंट हो गए. जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. डाउट है किसी को? नहीं ना. तो इट इज ए रिएक्शंस इन विच more reactive element displace the less reactive elements from their respective compounds. लेकिन अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ये आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा. इसलिए ये याद रखना है KNaCAMG केदारनाथ का माली आलू जरा फीका Fe पकाता है Pb, और कॉपर HgAg. तो ये है जिंक प्लस CuSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. एक रिएक्शन है Pb लेड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये बनाएगा PbCl2 प्लस कॉपर, बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. लेकिन यही अगर रिएक्शंस उल्टा होगा, इफ द रिएक्शंस इज मीन्स लाइक दिस कि कॉपर प्लस PbCl2, कॉपर प्लस PbCl2, ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं. दिस रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल. ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं. डाउट है? नहीं ना. अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी तक 3 रिएक्शंस हुआ एंड ऑल देयर एग्जांपल्स. आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस. क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डेफिनेशन सबसे इजी है. इट इज ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर आयंस. बस इतना ही याद रखना है. इट इज ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर आयंस. It is a reaction in which reactants interchange their ions. Extremely right. It is a reaction in which reactants interchange their ions. Double displacement reaction. Double displacement reaction. क्या? Double displacement reaction. It is a reaction in which रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर आयन. बेटा लिखते जाइए, यही तो प्रैक्टिस क्लास है. बैठिए नहीं, हमारे साथ लिखते जाएं, उससे याद रहेगा ब्रेन में, बातें बैठेंगी. ऐसे सिर्फ देख रहे हैं, देखने से थोड़े कोई याद हो जाएगा. इट इज ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर आयन्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट aqueous सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से BaCl2 aqueous, when we in which
reactants interchange their ions. Means here BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. क्लियर? इट इज बैलेंस्ड. बैलेंस है ये? नो. तो यहां 2 लिख दें. आई होप नाउ इट बिकम्स बैलेंस. हो गया ना बैलेंस? करेक्ट. तो it is double displacement reaction. It is a reactions in which reactants interchange their ion. You can take more examples of displacement reaction. और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का. जैसे आप ले लें पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4. When it reacts, it forms potassium sulfate K2SO4 plus NaCl. In this reaction precipitate is formed. PPT precipitate मतलब substance that is not soluble in water, जो water में soluble नहीं होता. तो this is called precipitation reaction. It is called precipitation reaction जहां precipitate का फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना? तो फर्स्ट क्या था जी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फिर क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स थे. कौन कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हाँ, वेरी गुड. और उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो था CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर क्विकलाइन बिकॉज इट्स प्रैक्टिकल यूज इन व्हाइट वॉशिंग. और उसके बाद FeSO4 का, फेरस सल्फेट का रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? लेड नाइट्रेट व्हाइट रहता है और लेड ऑक्साइड येलो बनता है. सबसे वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है ना? तो अब देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर बुक 10th क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना याद रखना है, सबस्टांस इन विच ऑक्सीडेशन इज एडेड. बस ऑक्सीजन इज एडेड. ऑक्सीजन जहां ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स. निगेटिव एलिमेंट्स मीन्स जिसकी वैलेंसी निगेटिव होती है. तो ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड. वन ऑफ द रिएक्शन कॉपर का ले लें, कॉपर प्लस O. कॉपर प्लस O जब हम हीट करते हैं, व्हेन वी हीट इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं, बट ये इंडोथर्मिक है बिकॉज यहां हम हीट दे रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है. एंड अनदर एग्जांपल, ऑक्सीजन इज एडेड हेयर व्हेन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2. अगेन वी रिएक्ट इट व्हेन कॉपर ऑक्साइड. तो जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो वी गेट कॉपर प्लस H2O. वी गेट द कॉपर प्लस H2O. इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं? दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. सर व्हाई इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन? देखिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है. A reaction in which oxidation and reductions takes place simultaneously. और जहां भी ऑक्सीडेशन होगा
रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है ऑलवेज। देन हियर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो इसका क्या हो रहा है जी, ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बताइए, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये भी मान लीजिए। जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होगा, बिकॉज वही ऑक्सीजन दे रहा है दूसरे को। तो और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ है क्या जी, ऑक्सीडेशन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सबस्टांसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये आ सकता है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जी, H2 का। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड। और अभी तो मैंने बताया बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस substances which give the oxidation, substances which is responsible for the process of oxidation, or it is known as oxidizing agent। और एक है reducing agent। reducing agent substances which is responsible for the process of reduction, it is known as reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऐसा 5-6 क्वेश्चंस बुकलेट में है जहां डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल है, आप एक बार उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कंप्लीट रिवीजन हो गया, लेकिन एक टॉपिक और है रिवीजन देना, वो है कोरोजन एंड रैंसिडिटी, जो फर्स्ट चैप्टर में डिलीटेड है, तो आप छोड़ दें उसे। और एक है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जो अभी हम लोगों ने छोड़ा, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन इज व्हाट, दैट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और एक क्वेश्चन और आएगा, वो आएगा व्हाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, व्हाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to the law of conservation of mass, total mass of reactants is equal to total mass of product. According to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, so equation should be balanced। equation को हमें बैलेंस करना है। एक तो ये आएगा और एक और आएगा, वो हम लोगों ने भी छोड़ दिया है। उसमें है कि what happens during or after the chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग और आफ्टर क्या होता है, हाउ वी नो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली। तो आपके बुक में है सिर्फ 4 पॉइंट, और होता तो काफी है, हमारे बुकलेट में 8-9 पॉइंट है लिखा हुआ, लेकिन चेंज इन स्टेट सबसे मजेदार है चीज, वो है चेंज इन स्टेट। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, what happens during and after the chemical reaction, what happens during and after the chemical reaction। सबसे मजेदार है वो है, इंटरेस्टिंग है, चेंज इन स्टेट में ही चेंज हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका
H2 प्लस O2 गैस है बेटा, ये भी गैस है, बना वाटर H2O लिक्विड। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एक क्वेश्चन बैलेंस का आएगा किसी भी फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव में आया किसी में नहीं आया। बैलेंसिंग का सबसे अच्छा उपाय है क्या? H2 है, हाउ मेनी H2? 2, O कितना है? 2, यहाँ वो क्या है? 2 कर दें, हाइड्रोजन 2 और ये 4। कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, वो लोग तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, आप ऐसे करो। क्लियर हो गया? अब है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आएगा, अगर राइट द एग्जांपल तो आप लेड नाइट्रेट का ले लेंगे, PbNO3। ओ, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है? बहुत अच्छा, यू ऑल बिकम ब्रिलियंट। और इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन से पास कर देते हैं। किससे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किससे? हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किससे? थर्मल डिकम्पोजिशन। बनेगा क्या? लेड ऑक्साइड कैसा होता है? येलो, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। क्या ये बैलेंस्ड है? No, sir. इसका बैलेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी नाइट्रोजन? 2। ऑक्सीजन इज हाउ मेनी? 3, 2 जा 6। Here we 2 lead, here write 2 और here is 4। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट था चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, और थर्ड क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर अगर इक्वेशंस को बैलेंस नहीं करते हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि बैलेंस द इक्वेशंस, यू शुड बैलेंस, यू शुड बैलेंस इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर लिखा हुआ नहीं है तो छोड़ दे सकते हैं, लेकिन बैलेंस कर देंगे तो अच्छी बात है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी ये देखिए गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, सेम रिएक्शन। क्लियर है? या और भी रिएक्शन है तो ले लें मेथेन। मेथेन को हम O2 के साथ बर्न करते हैं, क्या आएगा? CO2 गैस बनेगा प्लस H2। मेटल को एसिड के साथ कर दो, वो भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बड़े सारे एग्जाम्पल है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये क्या है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, बोलेंगे नहीं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में कैल्शियम ऑक्साइड को ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड, प्लस वाटर लिक्विड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट। यहां टेम्परेचर में चेंज हो गया। तो दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी आप बैठकर डू ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ एनसीईआरटी।